Okay guys, so good afternoon one and all. In last class we talked about eigenvalues and eigenfunctions, and we have studied several properties of eigenvalues or characteristic roots or characteristic values of the given matrix, and we have done one question of eigenvalues as well. Today we will be discussing eigenvectors. So I hope you all revised of the last class so that we can better understand today's class. So today we will be discussing eigenvectors of the given matrix corresponding to different eigenvalues. Can everybody see the PPT? Could anybody please tell me Yes, sir. the slide is visible? Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू. तो मैं आपको लास्ट क्लास का थोड़ा सा बता देता हूँ क्या किया था हमने. रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको. If you are given a matrix like A, and if you want to find out the eigenvalues of that matrix, then you have to solve this equation: determinant of A minus lambda I is equal to 0. This equation is called characteristic equation, and when you solve this equation will convert into a polynomial in lambda, where lambda is an eigenvalue. After solving that polynomial, we will get different values of lambda, and that different values of lambda are called eigenvalues. Right? In last class, we also discussed some properties of eigenvalues like 1, 2, 3, and 4. And some properties we have already verified in the class, and some properties I just gave you in the homework so that you can verify yourself. This question we had done in the last class, right? So today we will be discussing eigenvectors or characteristic vectors, or eigenvectors or characteristic vectors. Okay. So देखिए, you are given a square matrix of order n. A, capital A is a square matrix of order n, and there is a non-zero vector capital X, and this capital X vector satisfies this equation Ax is equal to lambda x. A is the given square matrix, lambda is the eigenvalue of matrix A, and capital X is the vector. You can say variable matrix. Capital X is a variable matrix, like जैसे आप वेरिएबल मैट्रिक्स कैपिटल एक्स बनाते हैं ना, बस वही है ये x1 x2 dot 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 like xn. So this capital X matrix is containing all the variables, okay, according to the given matrix A. Ax is equal to lambda x. अगर इस लैम्डा एक्स को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे और अगर x कॉमन ले लेंगे तो a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को आप ये भी लिख सकते हैं. देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स के में ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, इसलिए लैम्डा को अकेला नहीं लिख सकते, लैम्डा के साथ आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके लिखनी पड़ेगी. ओके, बिकॉज a इज एनी मैट्रिक्स एंड लैम्डा इज एनी स्केलर. Lambda is eigenvalue and it is scalar, so we cannot leave the lambda alone.
हमें मैट्रिक्स अगर ऑपरेशन मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स में ऑपरेशंस अगर मल्टीप्लाई करने हैं, यूज़ करने हैं, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करने, तो हमें लैम्डा को अकेला नहीं छोड़ सकते, हम लैम्डा इंटू आई लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जो कैपिटल एक्स होता है, इस कैपिटल एक्स को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स और आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए corresponding to the eigenvalues lambda. This capital X is called characteristic vector or eigenvector of a matrix A corresponding to the eigenvalue lambda. लैम्डा की वैल्यू हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं और लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज़ जो भी आती है उसको यहाँ पुट करते जाते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो कैपिटल एक्स जो लैम्डा की कॉरस्पॉन्डिंग निकलता है, इवैल्यूएट होता है, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर और आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। कोई मुझे बताएगा कि a माइनस लैम्डा आई टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 0, इसमें क्या खास बात नजर आ रही है आपको? कुड एनीबडी प्लीज टेल मी व्हाट इज स्पेशल अबाउट इट? कोई बताएगा? एवरीबडी इज लिसनिंग मी? यस सर। ओके, देखिए क्या खास बात है इसमें। A is the given matrix, lambda I is again a matrix, A माइनस lambda I एक मैट्रिक्स बन जाएगा, A माइनस lambda I ऑपरेट होके एक सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगा। कैपिटल X इज नथिंग बट द वेरिएबल मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो इस A माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स से जब कैपिटल X मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल X को आप इस तरह से ज्यूम कर सकते हैं x1 x2 x3 अकॉर्डिंग टू द चॉइस। तो जब A माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स को आप कैपिटल X मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा लीनियर इक्वेशन का एक सेट, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस डॉट 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 a1n xn इज इक्वल टू 0। राइट साइड में 0 है, a21 x1, ऐसा मिलेगा या नहीं मिलेगा बताइए? यस सर, मिलेगा। और आपको ये जो सिस्टम मिलेगा लीनियर इक्वेशन का, ये होमोजीनियस सिस्टम मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस सर। This will be a homogeneous system of linear equations because right side is completely zero. तो सिंपल सी बात है कि आप इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, जो कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसको सॉल्व करके, जैसा आप होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो कैपिटल एक्स जो वेरिएबल्स की वैल्यू मिलेगी वो आपकी आइगन वेक्टर्स हो जाएगी या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स हो जाएगी। द पॉइंट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन और नॉट? This point is clear to everyone? Sir, please repeat once again. यस सर। मैं कह रहा हूं कि ये एक सिस्टम ऑफ, मैं क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, ये एक सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगा और सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो हमें जो वेरिएबल्स की वैल्यू मिलती है वो वेरिएबल्स यहाँ पे कैपिटल एक्स है और कैपिटल एक्स को हम बोल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या आइगन वेक्टर। तो बस इस होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हमें जो कैपिटल एक्स की वैल्यूज मिलेगी वो हमारे लिए आइगन वेक्टर्स हो जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। अब देखिए खास बात क्या है। मैंने ये बोला कि ये होमोजेनियस सिस्टम है। आपको पता होगा कि होमोजेनियस सिस्टम के दो ही टाइप के सोल्यूशन होते हैं, एक होता है यूनिक सोल्यूशन और एक होता है इनफाइनाइट सोल्यूशन। नो सोल्यूशन वाला केस तो नहीं होता है ना? यस सर। वेरी गुड। हाँ सर, नो सोल्यूशन वाला नहीं होता है। नहीं होता है, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है।
जब आप इस सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आइगन वेक्टर के लिए, तो आपको हमेशा इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला केस ही मिलेगा, हमेशा इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला केस ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं, एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं। इसलिए लैम्डा की एक वैल्यू के लिए जब इस सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि इस होमोजीनियस सिस्टम के सॉल्यूशन का मतलब है कैपिटल एक्स की वैल्यू, और कैपिटल एक्स का मतलब है यहाँ पे आइगन वेक्टर। तो हमेशा ये वाला सिस्टम इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले केस में ही कन्वर्ट होगा, बिकॉज फॉर वन वैल्यू, for one eigenvalue there are infinite eigenvectors. Is this clear to everyone? मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा ये चीज। ओके ओके, द प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वेक्टर्स। नंबर 1, द आइगन वेक्टर x ऑफ ए मैट्रिक्स A इज नॉट यूनिक। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि there will be infinite eigenvector corresponding to one eigenvalue, so we can obviously say that the eigenvector x of a matrix A is not unique. Property 2, if lambda 1, lambda 2, lambda 3 dot 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 lambda n be distinct eigenvalues of a n square matrix capital A, then corresponding eigenvectors x1, x2, xn form a linearly independent set. ये भी मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, so don't worry about it. Property number 3, two eigenvectors x1 and x2 are called orthogonal if x1 transpose x2 is equal to x2 transpose x1 is always 0. Okay? So two eigenvectors x1 and x2 are said to be orthogonal if x1 transpose x2 or x2 transpose x1 is always 0. So these are the properties of eigenvectors. Okay? अभी मैंने आपको जो प्रॉपर्टी बताई है कि there are infinite eigenvectors corresponding to one eigenvalue, ये इसमें लिखी हुई नहीं है, आप लोग लिख लीजिए इसे अपनी कॉपी में, प्लीज राइट डाउन, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्लीज राइट डाउन, देयर आर इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स corresponding to one eigenvalue. There are infinite eigenvectors corresponding to one eigenvalue. ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Find the eigenvalues and eigenvectors of the matrix A is equal to -2, 1, 1, -11, 4, 5, -1, 1, 0. तो आपको इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। याद है लास्ट क्लास में मैंने आपको 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए और 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्रिएट करने का शॉर्टकट्स बताए थे, याद है? यस सर। वेरी गुड। यस सर। आप उन शॉर्टकट्स को यूज कर सकते हैं या फिर टिपिकली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 को भी सॉल्व करके इवेल्युएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई हमने मैट्रिक्स ए की, वो है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लीजिए आप।
ये देखिए डिटेल में सॉल्व कर रखा है। पहले -2 माइनस लेमडा एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग इसको रेफरेंस लेके, फिर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग और फिर इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं। -2 माइनस लेमडा के कॉरस्पॉन्डिंग, फिर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग और फिर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाली एक क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगी। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको लैम्डा की वैल्यूज मिलेगी। तो लैम्डा की वैल्यूज हो गई आपकी 1 -1 और 2। तो आपकी आइगन वैल्यूज हो गई 1 -1 और 2। यहां तो कोई डाउट हो तो बताइए पहले। No, sir. So there are 3 distinct eigenvalues 1 -1 and 2। ठीक है। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। हम पहले 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर -1 के कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करेंगे और फिर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से हम तीनों आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। आइगन वेक्टर्स, ये देखिए मेरी हैंडराइटिंग में है, आपको विजिबल है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो सबसे पहले हम लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको आइगन वेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालने के लिए एक इक्वेशन बताई थी, वो इक्वेशन ये थी a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन थी। Yes. ओके। तो सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 यहां रख दीजिए। तो ये बन जाएगी a माइनस आई एक्स इज इक्वल टू 0। सॉरी, ठीक है। a मैट्रिक्स आपको गिवन है, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो a माइनस आई करेंगे तो आपको ये वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। कैपिटल X वेरिएबल मैट्रिक्स है, इसमें अपने हिसाब से आप एलिमेंट रख सकते हैं x1, x2 एंड x3 इज इक्वल टू ये 0 मैट्रिक्स हो गए 0 0 0। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। No doubt. No doubt, sir. अब आप देख सकते हैं कि ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, यही है ना। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा जैसे -3x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, -11x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 0, -x1 प्लस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0। तो आपका एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन रहा है या नहीं बन रहा है? बन रहा है। बन रहा है। तो बेसिकली दिस इज होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको पता ही है, हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी काम में नहीं लेते, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए डायरेक्टली काम में लेते हैं। पता है आपको सबको? यस सर। यस। तो देखिए ये लिखा हुआ है नीचे, इट इज ए होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फॉर सॉल्यूशंस वी विल कन्वर्ट द सिस्टम इन एक्लन फॉर्म। तो बस जैसे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे इस सिस्टम को हमें सॉल्व करना है। तो करते हैं। ये हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। इसको पहले एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए पहले इस एलिमेंट को 0 बनाना पड़ेगा और इस एलिमेंट को 0 बनाना पड़ेगा। तो इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए R2 implies that 3R2 minus 11R1, और इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए R3 implies that 3R3 minus R1। अप्लाई कर दिया इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स में, तो ये दोनों 0 बन गए और बाकी सब कुछ एज इट इज है। अब आपको ये वाला एलिमेंट 0 बनाना है, तो ऑपरेशन लगा दीजिए। R3 implies that R3 plus R2, तो ये ऑपरेशन लगा दिया, ये वाला आ गया। तो ये आपकी एक्लन फॉर्म बन गई है। कोई मुझे बताएगा रैंक ऑफ ए क्या होगी यहां पे?
So 2. गुड, रैंक ऑफ ए इज 2 और रैंक ऑफ ए 2 है और ये लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है या नहीं है? बिकॉज नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 3। Yes, sir. तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में जब रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आती है तो कितने सॉल्यूशंस होते हैं? Infinite solution. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स होते हैं। तो हमेशा ये जो सिस्टम है ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन में ही रिड्यूस होगा। अब वो इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं वो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये जो एक्लन फॉर्म है इससे आप सिस्टम बनाइए वापस, -3x1 + x2 + x3 इज इक्वल टू 0 एंड -2x2 + 4x3 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं देयर आर 2 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स, सो वी हैव टू assume at least one variable as an arbitrary constant. You can choose according to your choice. x1 को, x2 को या x3 को, तीनों में से किसी एक को आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट एज्यूम करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो जैसे मान लीजिए मैंने एज्यूम कर लिया x3 को आर्बिट्ररी कांस्टेंट k, तो x3 का वैल्यू अगर मैं इक्वेशन सेकंड में रखूंगा तो x2 का वैल्यू आएगा 2k और x3 और x2 का वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में रखूंगा तो x1 का वैल्यू आएगा k। तो k यहां आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो यहां पे जो आइगन वेक्टर का सेट बना, आइगन वेक्टर्स बने कैपिटल X, जो x1 x2 x3 है वो क्या बनेगा? k, 2k and k, where k is arbitrary constant। तो आप देख सकते हैं k की डिफरेंट वैल्यूज के लिए कैपिटल X की डिफरेंट वैल्यूज आएगी। तो हम कह सकते हैं कि k की अलग अलग वैल्यूज के लिए हमें x के अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। सो देर आर इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू वन आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1। लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे आप देखिए इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स हमें मिल गए। यहां तक कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट? ये देखिए पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। सो आइगन वेक्टर्स विल बी x इज इक्वल टू k 2k k, वेयर k इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, आप k की वैल्यूज कुछ भी ले सकते हैं। फाइन, यहां तक कोई डाउट है? उसके बाद में मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। No, sir. No. ओके, अब देखिए मैंने बोला कि एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स आपको मिलते हैं। ठीक है, आप इसमें ये जो x इज इक्वल टू k 2k और k आया है, k का वैल्यू आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। k का आप कोई भी वैल्यू चूज कर लीजिए, यह आपकी चॉइस है। जैसे मैंने k इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो k इज इक्वल टू 1 लेने पर मुझे जो आइगन वेक्टर मिला, मान लो x1 मिला, वो मिला 1 2 1। इज इट करेक्ट? Yes, sir. अब मान लीजिए k का वैल्यू कुछ और लेते हैं। बोलिए k का वैल्यू क्या लें, आपकी जो इच्छा है वो बोलिए। 2। k का वैल्यू 2 ले लेते हैं, चलिए ठीक है। तो जो आइगन वेक्टर मिलेगा x2 वो क्या मिलेगा बताइए? 2 4 2। 2 4 2। ठीक है, इस 2 4 2 में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बच रहा है? 1 2 1। 1 2 1। और ये जो 1 2 1 आइगन वेक्टर ये x1 है या नहीं है? यस सर। 2x। Yes. तो क्या बन गया? 2x1 बन गया। यस सर। चलिए अब k का वैल्यू कुछ और लीजिए, कुछ भी लीजिए, बताइए। 6 लीजिए। कुछ भी ले लो, 1/2 1/4 -1/4, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। रैशनल
मतलब इंटीजर रैशनल कुछ भी लीजिए, बताइए के का वैल्यू क्या लें? 1/3। ठीक है 1/3 लेते हैं, तो x3 मान लेता हूं मैं, बताइए x3 क्या बन रहा है? 1/3, 2/3, 1/3। 1/3, 2/3, 1/3 यही बन रहा है। यस सर। क्या मैं इसे 1/3 टाइम्स ऑफ x1 लिख सकता हूं? यस सर। वेरी गुड। तो आपने एक चीज नोटिस की कि पहले आपने k इज इक्वल टू 1 लिया, तो आपको जो आइगन वेक्टर मिला, बाकी k की वैल्यूज में जो आइगन वेक्टर आए वो सारे के सारे इसके मल्टीपल आ रहे हैं। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जितने भी आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं वो x1 पे डिपेंड कर रहे हैं। यस सर। यानी ऑल आइगन वेक्टर्स एक्सेप्ट x1, all eigenvectors except x1 are dependent or not? यस सर, डिपेंडेंट Are ऑन x1। dependent। तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स जो बने हैं उनमें से कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे? 1। ओनली वन। जो भी आप k का फर्स्ट वैल्यू चूज कर रहे हैं, आप कोई भी चूज कर लीजिए, k का वैल्यू 1 चूज करना इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है। आप k का फर्स्ट वैल्यू 2 भी चूज कर सकते हैं, आप k का फर्स्ट वैल्यू -1/2 भी चूज कर सकते हैं, आप k का फर्स्ट वैल्यू 4 भी चूज कर सकते हैं, कुछ भी चूज कर लीजिए। k के फर्स्ट वैल्यू को चूज करने के बाद में जो आइगन वेक्टर बनता है वो इंडिपेंडेंट होता है, और उसके बाद वाले जितने भी आइगन वेक्टर्स बनते हैं वो सारे के सारे डिपेंडेंट होते हैं। दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन और नॉट? यस सर। ये देखिए लिखा हुआ भी है, बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k वी विल बी गेटिंग डिफरेंट आइगन वेक्टर्स which all will be linearly dependent। आया समझ में? एनी डाउट? नो सर। गुड। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपने इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट किए, जिसमें से एक डिपेंडेंट आपने शो किया, बाकी उस पर एक इंडिपेंडेंट शो किया और बाकी उस पर डिपेंडेंट है। सिमिलरली लैम्डा इज इक्वल टू -1 के लिए आप आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करोगे, वहां पे भी आपको सेम अप्रोच अप्लाई करनी है, सेम स्टेप्स अप्लाई करनी है। तो लैम्डा इज इक्वल टू -1 के लिए और लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए भी फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए भी इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स आएंगे और इसके लिए भी इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स आएंगे, और इन दोनों के लिए ही k का जो फर्स्ट वैल्यू चूज करेंगे आप वो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हो जाएगा और बाकी सारे के सारे डिपेंडेंट हो जाएंगे। इज नॉट सो? यस सर। तो देखिए मैं जो प्रॉपर्टी आपको बता रहा था वो ये लिखी हुई थी, अब आपको समझ में आएगी। अब ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी, सेकंड वाली प्रॉपर्टी आप पढ़िए। इफ λ1, λ2, λn be distinct eigenvalues of an n order square matrix A, then corresponding eigenvectors x1, x2, xn form a linearly independent set। अब समझ में आया? मतलब यह है λ1 के कोरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स होंगे, उनमें से एक आइगन वेक्टर आपने ले लिया x1। λ2 के कोरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स होंगे, उनमें से एक आइगन वेक्टर आपने ले लिया x2। λn सिमिलरली λn के कोरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स होंगे, आपने एक आइगन वेक्टर ले लिया xn। तो वो जो एक एक आइगन वेक्टर्स आपने लिए अपने चॉइस से, वो सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर उनका एक सेट बना लिया जाए तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट? यस सर। Yes, sir. ओके। तो इस तरह से आपको आइगन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे अभी लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग किया, वैसे आप लैम्डा इज इक्वल टू -1 के कोरस्पॉन्डिंग और 2 के कोरस्पॉन्डिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, सेम प्रोसीड्योर फॉलो करना है। कोई भी डाउट आता है यू कैन आस्क मी एनी टाइम।
Any question before proceed to next article of this module? Please ask if you are in doubt. Sir, this is quite new to us. So, recording is there. Yes, yes. Have you recorded the class? यस गूगल क्लासरूम में चेक नहीं कर रहे क्या आप? आदर्श बोल रहे हैं? जी सर. आदर्श कहाँ थे बेटा इतने दिन? सर एक्चुअली मतलब न्यू इतना सारा गूगल क्लासरूम हो गया है. मतलब ओल्ड मैथ्स वाला का भी है और न्यू वाला. मैथ्स वाला तो एक ही है. वो पुराना वाला ही सर. आदर्श इतने दिन कहाँ पे थे बेटा? बहुत कुछ चर्चा कर चुका हूँ मैं इस बारे में. मैं क्लासेस रेगुलरली सर अटेंड कर रहा हूँ. कौन सी क्लासेस आप रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं? आपका सर. ऐसा कोई नहीं सारा ही सकता. ऑनलाइन क्लास. ऐसा कोई यस सर, नहीं. सारा ही कर. तो फिर मैंने क्लास में तो सब कुछ डिस्कशन किया है. हर चीज के बारे में डिस्कशन किया है मैंने. और आपको पहले ही मैं ग्रुप में नए गूगल क्लासरूम का लिंक वगैरह सब शेयर कर चुका हूँ. और सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन भी कर रखा है नया गूगल क्लासरूम. आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं भाई? कोई बात नहीं, मैं वापस शेयर कर दूंगा अभी आपको. किसी के पास हो तो चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए प्लीज. गूगल क्लासरूम का लिंक BSc 204 का. सर आई हैव जॉइंड इन. आपने ज्वाइन कर रखा है ना? यस सर. तो फिर माइट बी दैट इट एस्केप. हाँ ध्यान दे रहा आपको. यस. अच्छा एक बात बताइए, ये डेस्कटॉप से कीबोर्ड से अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो कैसे लेते हैं? कोई हेल्प करेगा मेरी? सर प्रिंट स्क्रीन करके एक ऑप्शन है, वो उसको क्लिक करना चाहिए. बस उसको किसी के साथ क्लिक थोड़ी करना है. नहीं सर, सिर्फ उसी को करना है. और वो सेव कहाँ होगा? सर वो सर, तो अब पेंट में जाके पेस्ट करना पड़ेगा. पेंट में जाके पेस्ट करना पड़ेगा. हाँ उसको तो पेंट में जाके पेस्ट करना पड़ेगा ना. हाँ नहीं और कोई ऑप्शन है जो डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट सेव हो जाए? सर अभी तो पता नहीं, वो एक मेथड है, वही तो पता है. अच्छा जस्ट अ सेकेंड. हाँ पेंट में जाके ओके. अच्छा एक बात और बताइए, कैन यू हियर मी? यस सर. एक बात और बताइए, जैसे ये गूगल हैंगआउट मीट पे अभी मेरी स्क्रीन पे मैं विजिबल हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका वेबकैम विजिबल हो, तो उसके लिए क्या करें? सर नीचे एक 3 डॉट्स वाला प्रेजेंट नाउ के पास में हाँ. वो वाला ऑप्शन है, उसको क्लिक कीजिए. हाँ बिल्कुल ठीक है, कर दिया. अब चेंज लेआउट. चेंज लेआउट. यस सर. एंड देन जस्ट अ मिनट. देन आप चेंज कर सकते हैं, मतलब टाइल्ड वाला चूज कीजिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एकदम एक्सीड कर दीजिए तो हो जाएगा.
सेकेंड, अच्छा अच्छा, आ गया आ गया आ गया। अरे वाह, थैंक यू। वेलकम। इसको भी हम, और इसमें तो पूरे स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो और स्टूडेंट्स देखने हो तो क्या करें? सर वहां पर एक स्क्रॉल बार था, उसको एकदम मतलब मैक्सिमम पे कर दीजिएगा तो उतना ही दिखाएगा। 49 मैक्सिमम है आपके स्क्रीन में, उतना ही आएगा। स्क्रॉल बार तो मुझे अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। अच्छा ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। चेंज लेआउट ऑटोमेटिक, और ये आ गया, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट, एनीबडी वांट्स टू आस्क? आदर्श, द थिंग्स आर क्लियर? यस सर। ओके, चलिए जस्ट अ सेकेंड। Okay, so in this way we can find the eigenvectors corresponding to different eigenvalues, and always keep in mind that there are infinite eigenvectors corresponding to one eigenvalue. Fine. Now, Cayley-Hamilton theorem. This is very interesting theorem. The statement is in your syllabus. The proof of this statement is not in your syllabus, and the statement is very very interesting actually. What Cayley-Hamilton theorem says, Cayley-Hamilton theorem ये कहती है कि every square matrix satisfies its own characteristic equation. Every square matrix satisfies its own characteristic equation. देखिए इसको ऐसे समझिए आप, किसी भी मैट्रिक्स ए की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, यही होती है। यस सर। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो आपको किस वेरिएबल में पॉलिनोमियल मिलता है? किस वेरिएबल में पॉलिनोमियल मिलता है? लैम्डा। लैम्डा में। और उसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको जो रूट्स मिलते हैं वो किसकी वैल्यूज मिलती है? वेरिएबल्स। लैम्डा की वैल्यूज मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो लैम्डा होते हैं। यस सर। यानी इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहते हैं, जिसे हम आइगन वैल्यूज कहते हैं, जो लैम्डा होती है वो इसे सेटिस्फाई करनी चाहिए, नो डाउट। यस सर। ठीक है। यस सर। अगर इस लैम्डा की जगह में मैट्रिक्स ए रख दूं तो क्या वो सेटिस्फाई कर रही है? यस सर। बिल्कुल कर रही है, यस सर। क्योंकि a माइनस ए आई का मतलब हो गया a, तो a माइनस ए इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, और ये 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि a है सेटिस्फाइज इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन और नॉट? यस सर। इज इट क्लियर? तो अगर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा की जगह ए मैट्रिक्स पुट कर देते हो तो ध्यान रखना वो सेटिस्फाई होती है।
मैं पिछला एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी थी, दिख रही है आपको, लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अकॉर्डिंग टू केले हैमिल्टन थ्योरम, ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर माइनस a प्लस 2i, इसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो डेफिनेटली वो एक जीरो मैट्रिक्स बनेगी. यहां पे 2 अकेला नहीं लिख सकते हम, क्योंकि ऑपरेशन सारे मैट्रिक्स को लेके बनाया जा रहा है, इसलिए 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे. तो अकॉर्डिंग टू केले हैमिल्टन थ्योरम, ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर माइनस a प्लस 2i विल बी ए जीरो मैट्रिक्स. और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं. ए गिवन है, उससे ए स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए, ए क्यूब फाइंड आउट कीजिए और इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए, आपको डेफिनेटली जीरो मैट्रिक्स मिलेगी. So the statement of Cayley-Hamilton theorem is clear to everyone or not? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए. अरे बाप रे, रिपीट इतना सा है कि किसी भी मैट्रिक्स की अगर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को वो मैट्रिक्स खुद भी सेटिस्फाई करती है. मैट्रिक्स ए की, इस क्वेश्चन के लिए मैट्रिक्स ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये वाली बन के आ रही थी. आदर्श यही आ रही थी. जी सर. तो केले हैमिल्टन थ्योरम ये कहती है कि अगर आप इसमें लैम्डा की जगह ए पुट कर दो तो डेफिनेटली ये सेटिस्फाई होगा. मतलब ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर माइनस a प्लस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली वो जीरो मैट्रिक्स बनेगा. यस सर. नाउ क्लियर आदर्श? यस सर, थैंक यू. So every matrix itself satisfies its own characteristic equation. अब देखिए केले हैमिल्टन थ्योरम का एक और एडवांटेज, वो एडवांटेज क्या है? वो है कि हम केले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं. We can find the inverse of the given matrix by using Cayley-Hamilton theorem. कैसे करेंगे वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा. So inverse by Cayley-Hamilton theorem. Okay? ओके, सो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, या फिर अभी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये आर्टिकल ख़त्म हो जाएगा शायद. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास किसकी है आपकी? इंजीनियरिंग ड्राइंग सर. इंजीनियरिंग ड्राइंग. अच्छा अच्छा, ठीक है. चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप फिर ये नेक्स्ट क्लास के लिए अटेंड नहीं कर पाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, चलिए कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग. केले-हैमिल्टन थ्योरम के स्टेटमेंट तक आप लोग पढ़ के आएंगे और बाकी और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग ई बुक से, और कोई भी डाउट है आप मुझसे डिस्कस करेंगे. फिलहाल कोई डाउट हो तो बताइए. Okay, if you don't have any doubt, then I think we should leave the class. So thank you very much all of you, and please revise this class before taking next class. It will be very helpful. And as I told many times in the class that please come as soon as possible for offline classes. आपका ये सेमेस्टर जो है थ्रू आउट ऑनलाइन नहीं चलेगा, आपके एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन नहीं होंगे, आपके एग्ज़ाम्स वगैरह सब कुछ ऑफलाइन ही होगा. सो इट वुड बी बेटर फॉर ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़ इफ़ यू कैन देन प्लीज़ कम.
as soon as possible for offline classes. Anyways, thank you very much. Thank you, sir. Have a good day. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much.